Okay, so hello everybody, good morning and welcome back to the EduphoreIAS, the Hindu analysis live class. Today, the date is 11th of August and we are starting with the Hindu analysis. But before that, as usual we do, let us first discuss the questions that were given to you in yesterday's class. ठीक है, so सबसे पहले हम उस questions को देख लेते हैं and फिर हम आज की discussion start करेंगे and after that फिर हम आज के जो relevant questions होंगे आज के discussion related उसको फिर हम देखेंगे. ठीक है, तो कल से क्वेश्चन जो था फर्स्ट फॉर प्रीलिम्स, द कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन सीसीएम इज लीगली बाइंडिंग एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द सीसीएम, दैट इज कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन. You need you have to find out the correct answer. So what is correct answer here? You can put the same in the comment section as well. ठीक है, सो कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन जैसे हमने डिस्कस किया था हम लोगों ने कि लीगली बाइंडिंग तो है, but India is not a signatory. We have seen we discussed in that article कि there are many countries, major countries which are not party to this CCM, including US, Russia, China, Israel, India and even Ukraine. So therefore second statement is wrong, first is correct, so only one is correct. A option is correct. Second statement, second question was what are small modular reactors and how can they contribute to decarbonization? Fine. Considering the climate change and all, this question is important, and from the yesterday's article, text and this explainer page, text and context from the Hindu, that can SMRs help India achieve net zero? That was the article actually titled. So first is what are nuclear modular reactors? So before that we need to understand what are conventional. So conventional की हमने बात की थी nuclear power plants. So how can, again same using same 10 marker question है. So IBC को follow करते हुए intro, body and conclusion इसी format में हम answer लिख सकते हैं. You can start with either the intro of the article itself as your intro of the answer, fine, or you like for example the world's quest to decarbonize itself is guided among other things, let us say, by the UN Sustainable Development Goals, UN SDG 7 की कल बात की थी हमने कि to and this SDG 7 is related to ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. So therefore in your intro part itself you have mentioned the SDG as well, you have mentioned the keyword decarbonization as well, fine. So this is how it will go around 2-3 lines of this introduction be like. So this could be one of the introductions. Now what are small modular reactors? So you can start within the body explanation, in the body part of your answer, that conventional nuclear power plants often suffers from time and cost overruns, fine. So as an alternative, several countries are developing small modular reactors, nuclear reactors with a maximum capacity of 300 megawatt are known as small modular reactors. Because question is about what are a small modular reactors, so first you need to define it, okay. And these are going to actually complement the conventional NPPs, that is nuclear power plants. After that, the second part of the question is how can they contribute to decarbonization? So first of all you need to mention a bit about the decarbonization, fine. That is the transition from coal-fired power generation to clean energy is known as decarbonization, fine. And after that you can build up further in continuations to this, how can they SMRs help in this decarbonizing the economy. So उसके लिए ज़रूरी है कि हम focus जो हमारा हो that is more on the advantages or this of the SMR. So next point could be like studies have found that SMRs can be safely installed and operated at several brownfield sites that may not meet the more stringent zoning requirements for conventional NPPs. So because how can they contribute to decarbonization? Firstly you need to define it, and secondly you need to mention the the advantages of SMRs, because then only you can substantiate your answer that yes, these are the advantages of SMRs which can actually help in decarbonizing the economy, fine. Apart from that you can also say
that the recent uptick in coal consumption in Europe, despite the increase in solar and wind power, suggests that reliable 24/7 low carbon electricity resources are critical to ensure the deep decarbonization of power generation, along with grid stability and energy security. So this is how you can, on the positive or affirmative lines, you can conclude your answer. Fine. So this would be complete structure of your answer: intro, body, and conclusion. Fine. Since the question is of 10 markers, so therefore please do not cross the 150 words limit as well. Okay. So this is all about yesterday's question. Now let us start with the today's analysis, and then we'll see the question from today's newspaper itself. So quickly let us have a look at the front page. देखते हैं कि फ्रंट पेज से क्या इंपॉर्टेंट है आज के लिए. फ्रंट पेज, दिस इज द कवर पेज. फ्रंट पेज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है. So this is the front page or the first page of this paper. Today's edition, 11th of August. So see, peace will be restored in Manipur, Prime Minister has assured in Lok Sabha while keeping his views on the no confidence motion that has been introduced against his government. Fine. So PM is hopeful and also hopeful of the peace that will be restored in Manipur. Second thing is, bill seeks to remove CGI from panel that picks CEC and ECs. तो CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, उनकी अपॉइंटमेंट के लिए मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि उनकी अपॉइंटमेंट जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी करे, एंड उस बॉडी में जो कॉम्पोजिशन जो होगी उस कमेटी की, बेसिकली जैसे आरबीआई के चीफ की डायरेक्टर जो है उनकी भी अपॉइंटमेंट इसी कुछ लाइन पे होती है. तो उस कमेटी में 3 लोग होंगे. फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर जो हेड करेंगे इस कमेटी को. सेकंड, एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा. एंड सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो ये 3 लोग बेसिकली इस कमेटी को हेड करेंगे, जो कमेटी और पैनल अपॉइंट करेगी सीईसी एंड ईसीज को. ठीक है. नाउ गवर्नमेंट ने जो बिल कल इंट्रोड्यूस किया राज्यसभा में, उसमें ये कहा है कि बिल सिक्स टू रिमूव सीजीआई. तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो ये 3 लोग होंगे, पीएम तो होंगे, एलओपी भी होंगे, बट सीजीआई नहीं होंगे. सीजीआई की जगह पे हम रखेंगे कोई एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर. नाउ अब यहाँ पे इशू है कि पहले तो बात तो ये कि ये जो बिल है, जो ये सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी उसके अगेंस्ट है. फाइन, क्योंकि वहां पे सीजीआई को रखने की बात की गई थी, यहाँ पे रिमूव की जा रही है. सेकेंड, ऑपोजिशन पार्टीज ने भी इसी चीज को रेज किया कि अगर प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर मींस 2 लोग लेट अस से सिंगल पार्टी रूलिंग पार्टी से हैं, ठीक है, एंड एक एलओपी है, सो मेजोरिटी तो इनके साथ है. इट मीन्स कि गवर्नमेंट जैसे चाहेगी, जिनको चाहेगी अपॉइंटमेंट अभी भी करती है, बाद में भी कर सकती है. सो दीज आर द मेजर एलिगेशंस ऑफ ऑपोजिशन. ठीक है. So this is all about the yesterday's bill that has been introduced related to the appointment of CEC and ECs. Now ISRO releases pictures of Earth and Moon. So ultimately we are waiting for 23rd of the August when this Chandrayaan 3 would be making soft landing on the surface of the Moon. What are soft landing? We have already discussed. Okay, another important thing from this is, कल MPC that is Monetary Policy Committee की मीटिंग थी, एंड उसमें RBI has kept और leaves key interest rates unchanged. सो जो रेपो रेट है उसको बनाए रखा है RBI ने 6.5% पे. ठीक है. पॉलिसी रेपो जिसको हम बोलते हैं, जिसपे कि RBI लेंड करती है मनी टू द कमर्शियल बैंक्स. ठीक है. सो पॉलिसी रेपो रेट हैज बीन केप्ट अनचेंज्ड. ठीक है. ओके. This is another important thing. Indian GPS Navik to be linked to Aadhaar enrollment devices. तो अभी तक जैसे enrollment होती है आधार में, जो devices यूज होती हैं, उसको अब नाविक से सैटेलाइट सिस्टम के साथ इसको लिंक किया जाएगा. द नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, और नाविक का फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन विद, NAV इज नेविगेशन, I इज विद इंडियन, C इज कॉन्स्टलेशन और नाविक. The 7 satellite system that makes up India's version of the American GPS global positioning system, जो आप आमतौर पे आप लोग फोन में भी देखते हो,
यूज फॉर लोकेशन ट्रैकिंग एंड ऑल, ठीक है. Will soon be integrated with Aadhaar enrollment devices across the country set by the Department of Space. The department has facilitated successful conduct of field trials of this, and ultimately the committee made its report public on Thursday. Currently, the Aadhaar enrollment kits that are used to collect and verify personal details are linked to GPS. So GPS जो है वो तो US की है, so therefore we want to switch from GPS to our own indigenous Navik. Fine, like GPS one. Okay. So this is a city page. You can see. ठीक है. सो सिटी पेज कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, दिल्ली से है. जो लोग दिल्ली से हैं वो जरूर इसको देख लेंगे, अदरवाइज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट पेजेस यू कैन सी स्टेट्स एंड मोर और लेस स्टेट्स पेज पे आपको ज़्यादातर पॉलिटिक्स ही देखने को मिलती है. ठीक है. यस. ओके. Further state pages, states related, so not that important, only politics going on. So इससे आपको ये भी आइडिया लगना चाहिए कि हार्डली अगर 25 पेजेस टोटल है उसमें से हार्डली 4 to 5 पेजेस आर इंपॉर्टेंट, नॉट मोर देन दैट. फाइन. तो एक ये भी चीज़ ध्यान रखना, सारा पेपर नहीं पढ़ना होता, जस्ट द रेलिवेंट वंस. These are not that important from exam point of view, so therefore I am skipping them. Okay. So editorial finally, and see demolitions as state sanctioned collective punishment. जो नू में this हरियाणा में जो violence हुई है, and after that demolition उससे related है ये. तो more or less इस पे थोड़ी सी bulldozer justice की बात की गई है, and politics ज़्यादा यहाँ पे so therefore we are not going to discuss this article today, fine, because it has more of a political this angle as well. So therefore what is important for us from today's editorial page is this article, that is India's Myanmar quandary and its paradoxical policies. तो टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि दिस आर्टिकल इज मोर और लेस अबाउट द इंडियाज एंड म्यांमार करंट रिलेशन, करंट स्टैंडिंग क्या है दोनों के बीच में, उससे रिलेटेड है. एंड करंटली कैसे हम शेयर किस फाउंडेशन, किस बेस पे एक्चुअली क्या रिलेशन बिल्डअप है, क्या नहीं है, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ आवर रिलेशन विद म्यांमार. एंड क्वांड्री इज बेसिकली कंफ्यूजिंग स्टेट, उलझन, एंड इट्स पैराडॉक्सिकल पॉलिसी. पैराडॉक्स क्या होता है? Paradoxical policy, you can say the contradictory policy. Paradox is a situation where you have contradictions either in statements or situation itself. Okay, so what happened? On July 31st and August 1 will be recorded as the crucial dates when the history of Myanmar's ongoing tragedy was written. बैकग्राउंड इससे पहले मैं आपको दे दूं कि थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि वहां पे मिलिट्री, जिसको कि जुंता बोलते हैं, उसकी अगेन अभी फिलहाल रूल कर रही है मिलिट्री म्यांमार में. ओवरथ्रो कर दिया था डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ आंग सान सू की. ठीक है. एंड देयरफॉर करंटली जो है जुंता इज बेसिकली मिलिट्री ऑफ म्यांमार. सो मिलिट्री इज एक्चुअली रूलिंग द म्यांमार करंटली. एंड देयरफॉर अभी हाल फिलहाल में कुछ स्टेप्स लिए हैं मिलिट्री ने और जुंता ने, ठीक है, इन ऑर्डर टू, जो कि ये शो करते हैं कि कहीं ना कहीं मिलिट्री जो है वो थोड़ी रिलैक्सेशन दे रही है, बिकॉज आंग सान सू की जो थी उनको भी जेल टर्म हुई थी. फाइन. तो उसमें भी थोड़ी जो है ढील देने की कोशिश की है मिलिट्री ने. एंड अलॉन्ग साइड दैट कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि दोबारा से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश हो सकती है, बट दैट रोड इज लॉन्ग ड्रॉन, एक्चुअली टाइम लगेगा अभी उसमें. सो जुलाई 31st एंड अगस्त 1 को कुछ डिसीजंस लिए गए, इसलिए ये डेट्स जो है क्रूशियल इन द हिस्ट्री ऑफ म्यांमार ऑनगोइंग ट्रेजेडी. इन द फर्स्ट केस द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार मिंट स्वाय अनाउंस द 4th एक्सटेंशन ऑफ द इमरजेंसी फॉर अनदर 6 months. मीन्स अगले 6 महीने तक तो अब मिलिट्री की अभी राज चलेगी, विच इज इन वायलेशन ऑफ द 2008 कॉन्स्टिट्यूशन. In second instance, the military regime decided to release several political prisoners and even reduce the sentences imposed on Daw Aung San Suu Kyi and the deposed president Win Myint.
ठीक है। सो देख रहे हो दो मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं 31st एंड 1st को, इसलिए डेट्स कह रहे हैं ऑथर कि इंपॉर्टेंट है इस सेंस में। इमरजेंसी एंड इलेक्शंस, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे बट विल बी फोकसिंग मोर और लेस। इमरजेंसी मीन्स सिचुएशन ऐसी है कि अभी हम इलेक्शन नहीं करा सकते। दिस इज व्हाट एक्चुअली द मिलिट्री और द जुंता ऑफ म्यांमार इज सेइंग। So the extension of the emergency further delays the election proposed by the military. Min Aung Hlaing, the coup orchestrator, justified the extension due to the failure to establish normalcy in large part of the country. तो इस बेस पे जो है इस इमरजेंसी को, मिलिट्री रूल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है मिलिट्री ऑफ दिस जुंता ऑफ गवर्नमेंट और मिलिट्री ऑफ दिस म्यांमार ने। क्यों? क्योंकि नॉर्मैलिटी लाइक सिचुएशन अभी नहीं है कंट्री में। However, it is this pursuit of normalcy that has resulted in suffering with ACLED, that is Armed Conflict Location and Event Data Project Analysis and Crisis Mapping, reporting that Myanmar civilians witnessed 2.5 times more violence than those in Afghanistan. So you can see कि अफगानिस्तान से 2.5 times ज़्यादा वायलेंस हो रही है किसमें? म्यांमार में, which is not good in any case. So the military regime's relentless campaign includes an average of over 30 air strikes per month in 2023. Surprisingly, the Tatmadaw, that is the military of Myanmar, exerts real control in only 30 to 40% of the territory, as in admissions from the Bureau. Okay, so issue क्या है? एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो रिपोर्ट दी गई है स्पेशल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ फॉर म्यांमार के द्वारा, उसने ये कहा कि 30 से 40% ही एरिया म्यांमार का ऐसा है जहां पे मिलिट्री का कुछ खास इम्पैक्ट है। ठीक है, अदरवाइज मींस 1/3 एरिया ही है जहां पे मिलिट्री की जो है जिसको कि तत्मादाव अनदर नेम, और इसको जुंता भी बोल देते हैं, जुंता, जनता नहीं जुंता। ठीक है, जहां पे कि लोग मिलिट्री के फेवर में हैं। So factitious national election would lead to the loss of further credibility of the military if it is conducted only in a third of the country. 30 to 40% means just considering that 1/3 of the people of Myanmar are in favor of military rule. What about 2/3? So ultimately military by conducting election itself can lose credibility as well. Fine. उसके बाद हम ये देखते हैं, पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, हम सीधा आ जाते हैं यहाँ पे। सो जुंता's डिसीजन, देखो जुंता यहाँ पे है, तो जुंता इज मिलिट्री ऑफ म्यांमार एक्चुअली। तो जुंता's डिसीजन टू रिड्यूस मिस सू की सेंटेंस एंड शिफ्ट हर फ्रॉम प्रिजन इज अ मूव दैट हैज परप्लेक्स्ड अ फ्यू, yet it is not a step towards democracy. Despite being Tatmadaw's biggest rival, Miss Suki has demonstrated a willingness to compromise and work with the military. So this is the issue. He is saying that it is not a step towards democracy, that is relaxation in her jail term. She remains the rallying point for political change in Myanmar despite international criticism over her position, stand and role in the Rohingyas persecution. Now रोहिंग्या की बात आती है। रोहिंग्या क्राइसिस आप लोगों ने सुना होगा आज से 3-4 साल पहले। स्पेशली रोहिंग्याज आर द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस एक है म्यांमार में, वी कॉल्ड इट रखाइन। ठीक है, रखाइन प्रोविंस, जहाँ पे कि मेजॉरिटी रोहिंग्याज रहते हैं, रोहिंग्या पॉपुलेशन रहती है यहाँ पे। रोहिंग्या कौन से हैं? दीज आर द मुस्लिम्स, यू नो, मेजॉरिटी मुस्लिम, मतलब जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ म्यांमार एक्चुअली रिसाइड्स इन रखाइन प्रोविंस ऑफ म्यांमार। ठीक है, तो वहाँ पे हुआ क्या था कि मिलिट्री ने काफ़ी इनके खिलाफ एक्शंस लिए, ऑपरेशंस किए, तो इसलिए प्रोसिक्यूशन की जो है वो एलिगेशन भी लगी कि मिलिट्री जानबूझ के कर रही है। एंड उस टाइम पे सरकार जो थी वो आंग सान सू की ही थी। ठीक है, एंड उसको इतना ही नहीं, इवन कि आंग सान सू की ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके एज अ लॉयर डिफेंड भी किया इस कि मिलिट्री ने कुछ गलत नहीं किया। तो उस टाइम पे इन पे काफ़ी एलिगेशंस लगे कि कहीं ना कहीं ये मिलिट्री को डिफेंड कर रही है। इसलिए यहाँ पे इस लाइन में कहा गया है कि कहीं ना कहीं शी हैज़ द विलिंगनेस टू कॉम्प्रोमाइज एंड वर्क विद द मिलिट्री। फाइन, एंड उसका फॉल आउट आप देखो कि जो रोहिंग्याज हैं वो भाग के काफ़ी हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में आ गए थे, दिल्ली में आ गए थे, कुछ सदर्न स्टेट में चले गए थे। तो रोहिंग्या क्राइसिस एंड फाइनली मेजॉरिटी ऑफ देम वेंट टू बांग्लादेश। ठीक है, तो अभी भी बांग्लादेश की एक आइलैंड है, वहाँ पे रह रहे हैं। Some protest may ease with these symbolic gestures, but more importantly,
Suki's return could potentially split the National Unity Democratic Government led resistance. ठीक है, सो यंग जनरेशन जो है वो इस रेजिस्टेंस को लीड कर रही है एनयूजी को, दैट इज नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट लेड रेजिस्टेंस एंड इट्स कोऑपरेशन विद द एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन रिकंसिलिएशन विद द रोहिंग्यास। तो वो क्या रहा है कि अगर वो आती हैं, इलेक्शंस प्रपोज की जाती है, फिर से इलेक्शंस होते हैं, तो दिक्कत ये है कि जो स्प्लिट है इस बार वो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो कि इनकी पार्टी है, जो कि ये लीड कर रही थी, वहां पे भी उसमें जो यंगर जनरेशन हैं उनके साथ स्प्लिट के चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज दे आर टोटली अगेंस्ट दिस मिलिट्री रूल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट cooperation with ethnic armed organization even reconciliation with the Rohingyas can be problematic। ठीक है, सो अनदर इशू ये है these symbolic gestures by junta may ease some protest and allow the military to claim progress over international and regional appeals, possibly leading to a lifting of sanctions and revived economic prospects. Additionally, they offer political bandwidth and a face-saving token to actors engaging with junta such as India. अब यहाँ से स्टार्ट होती है स्टोरी इंडिया की, that how India is taking paradoxical stand or paradoxical adopting paradoxical policies. तो इसमें ये कहा गया है कि कोविड के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे क्या हुआ कि इंडिया टूक अ प्रोएक्टिव अप्रोच बाय प्रोवाइडिंग फूड एंड वैक्सीन असिस्टेंस। मेजॉरिटी ऑफ नेशंस को हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड वैक्सीन प्रोवाइड किया, मोर देन 100+ कंट्रीज, 150+ कंट्रीज। So Myanmar was one of them. That was a humanitarian kind of, on humanitarian ground. However, the plight of Myanmarese people seems to have faded from memory, and with the accusations of instigating violence in Manipur replacing it. तो अभी क्या हुआ कि मणिपुर में जो चल रहा है वहां पे ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं म्यांमार से जो आए हुए लोग हैं, जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, उन लोगों ने कहीं ना कहीं इंस्टिगेट किया जो अभी वायलेंस हमें देखने को मिल रहा है इस पे, कि वहां की जो सीएम है बीरेन सिंह, उन्होंने भी ऐसा कुछ बोला था। ठीक है, so that's why the context is this. Communities along with the border have already defied the home ministry by providing shelter to the refugees. तो हुआ क्या था कि जब रखाइन प्रोविंसेस से जब प्रोसिक्यूशन होने लगी रोहिंग्यास की, तो वो लोग कहाँ भाग के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आने लगे, बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बाउंड्री लगती है म्यांमार से। तो देयरफॉर हुआ क्या कि कुछ जैसे वहाँ की मिजोरम है या मेघालय, स्पेशली मिजोरम एंड स्टेट, वहाँ के सीएम ने रिफ्यूज भी कर दिया था होम मिनिस्ट्री की जो डायरेक्शंस थे कि उनको एंटर ना करने दो, बिकॉज समवेयर जो ये लोग हैं, म्यांमारी पॉपुलेशन जो है, जो ट्राइब्स हैं नॉर्थ ईस्ट एंड म्यांमार में, काफी हद तक एथनिक रिलेशंस और टाइज जो है वो शेयर करती हैं वर्षों से। ठीक है, तो इसलिए उनको वहां की सरकार ने नहीं रोका। कंसर्न्स ओवर ट्रैफिकिंग एंड ड्रग स्मगलिंग इन म्यांमार लेड टू इंडिया सस्पेंडिंग द फ्री मूवमेंट रेजिम इन सितंबर 2022। तो फ्री मूवमेंट नाउ रेजिम क्या होता है, दो तीन यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं। फ्री मूवमेंट रेजिम, तो जैसा मैंने कहा कि कुछ एथनिक और टाइज की वजह से ट्राइबल लोग जो हैं, जो नॉर्थ ईस्ट हमारे इंडिया में हैं, प्लस जो म्यांमार में हैं, वो हिस्टोरिकली रिलेशन शेयर करते हैं। तो इसलिए FMR एज अ नेम सजेस्ट फ्री मूवमेंट रेजिम, इसमें फ्री मूवमेंट दी गई थी टू दीज ट्राइब्स which have ethnic relations or ties with the Myanmari tribes, let us say. They can move, come and go without visa for how long, for how many stretch? So 16 किलोमीटर की एरियाज में दोनों ही कंट्रीज से, लेट अस से, जो लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, वो विजिट कर सकते हैं। ठीक है, वो म्यांमार के जो ट्राइब्स है वो आके इंडिया में मिल सकते हैं, जिससे भी टाइज हैं, बट that border, this area has been defined as 16 kilometer, within the 16 kilometers of the border areas। ठीक है, तो ये इसको इंडिया ने सस्पेंड कर दिया बिकॉज ऑफ ट्रैफिकिंग एंड ड्रग रिलेटेड स्मगलिंग इन 2022। Next, India's External Affairs Minister S. Jaishankar raised the issue of infrastructure projects and stability in border areas with his Myanmar counterpart on the sidelines of Mekong Ganga Cooperation Meeting. Now, what is Mekong Ganga Cooperation Meeting? So यहाँ से concepts हैं आपके। फ्री मूवमेंट regime क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मेकोंग गंगा कॉपरेशन क्या है ये भी पता होना चाहिए। So Mekong Ganga Cooperation is nothing but it is cooperation among the 6 countries, India plus 5 South ASEAN members, Laos, Cambodia, Vietnam, Thailand,
एंड म्यांमार। फाइन, सो 5 ये प्लस इंडिया, 6 कंट्रीज की कोऑपरेशन है and especially they want to provide connectivity and cooperation between the people actually who are residing in the 2 water basins or these 2 river basins, Mekong and Ganga. ठीक है, so these are the 2 rivers actually. India has also supported the Association of Southeast ASEAN Nations 5-point consensus. इसके बारे में हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं। 5-point कंसेंसस क्या है, इस पे आसियान जो 10 मेंबर कंट्री है, जो ब्लॉक है, उसमें ये कहा था कि फॉर एग्जांपल वायलेंस जो है उसको इमीडिएटली सस्पेंड करना, एनवॉय और जो है उनको देश अपॉइंट करना सो दैट कि जो वायलेंस चल रही है उसको काफी हद तक खत्म किया जा सके। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है म्यांमार में उसको एस्टैब्लिश किया जा सके। एंड ये यूनाइटेड नेशंस की कोई स्पेशल एनवॉय होना चाहिए जो इस चीज को देखे। प्लस डायलॉग है इसमें कि डायलॉग जो है दैट शुड टेक द पैरामाउंट व्हाट, दैट शुड बी गिवन द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। फाइन, कि डायलॉग जो है बातचीत करने से इसका हल निकलेगा, लड़ने से नहीं होगा। ठीक है, सो दीज आर द 5 अमंग्स द 5-point कंसेंसस की बात करो, जो वायलेंस उसको कम करो, यूनाइटेड नेशन का कोई एनवॉय अपॉइंट करो जो इस चीज को देखे, यहाँ पे शांति बहाल करे। सो दीज आर द एक्चुअली डिफरेंट 5-point consensus related to the establishment of peace and law and order in Myanmar or in other countries, this South Asian nations as well, किसी भी South Asian की कंट्री में। Nevertheless, India's policy towards Myanmar presents a paradox. अब यहाँ से ये कह रहे हैं कि जो इंडियन पॉलिसी है वो पैराडॉक्सिकल है। क्यों, उसको हम देखते हैं। India's official rhetoric on commitment to democracy in Myanmar is in contrast with its policy framed through the lens of its security concerns in Northeast India and relation with China. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एक साइड जो इंडिया है वो बात करती है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, स्टैब्लिश होनी चाहिए, इलेक्शंस होनी चाहिए म्यांमार में, बट दूसरी साइड जो ये कमिटमेंट है टू डेमोक्रेसी और रेटोरिक जो है दैट स्टैंड्स इन कंट्रास्ट टू इट्स ओन पॉलिसी that has been framed keeping in mind or that has been framed with the lens of security of its northeastern states and especially the China आपको पता है अरुणाचल में कोशिश कर रहा है एंड अरुणाचल के बॉर्डर के साथ इवन की क्लेम करता है कि होल ऑफ अरुणाचल इज अ पार्ट ऑफ तिब्बत ओनली। सो चाइना के साथ इशू है उस फ्रंट पे। तो इसलिए कह ये रहे हैं ऑथर कि कहीं ना कहीं चाइना जो इंडिया की पॉलिसीज हैं वो अपनी सिक्योरिटी नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर की प्लस चाइना की जो कर रहा है इंटरवेंशन उस एरिया में उसको देखते हुए इंडिया मेजर ले रही है, बट दूसरी साइड ये डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की भी बात करती है। तो सो दैट्स व्हाई इट इज बोथ ऑफ देम आर इन कंट्रास्ट टू ईच अदर। द सेकंड थिंग इज फॉर एग्जांपल इंडियाज अनाउंसमेंट ऑफ द सेरांग हमवांगबुच्चा railway project near the Myanmar border under India's Act East policy aims to counter China's railway access in Myanmar through यूनान एंड द एम्बिशियस चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं कि हाउ चाइना को काउंटर करने के लिए हम मेजर्स ले रहे हैं, ना कि हमें डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए। क्यों, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है। साइरैंग जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ मिजोरम, एक्चुअली द सदर्न टिप ऑफ मिजोरम जहाँ पे आपकी ये प्लेस है साइरंग। एंड हमवांग बुच्चा जो है इट इज अगेन इन मिजोरम, एक्चुअली दिस इज अ बॉर्डर एरिया शेयरिंग विद म्यांमार। एंड एक्चुअली जो हमवांग बुच्चा की जो ये टेरिटरी है दिस बॉर्डर्स एक्चुअली द रखाइन प्रोविंस समवेयर ऑफ म्यांमार। तो यहाँ पे एक रेलवे ट्रांजिट लाइन बिछाने की बात चल रही है। ठीक है, रेलवे प्रोजेक्ट है ये। तो दिस इज सिमिलर काइंड ऑफ चाइना की जो रेलवे प्रोजेक्ट है दैट इज गोइंग ऑन, दैट इज connecting Myanmar through its Yunnan province of China. So disturbingly, sources such as Justice for Myanmar, SACM and the United Nations Special Rapporteur have reported an increase in India's arms supply to the military since the coup. कि जब से जुंता ने स्टार्ट किया है रूल करना, जब से मिलिट्री कू हुई है, जब से तख्ता पलट हुई है कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को हटा के मिलिट्री ने रूल करना स्टार्ट कर दिया, तब से ये भी एलिगेशंस लग रहे हैं इंडिया पे कि कहीं ना कहीं जो इंडियन गवर्नमेंट है वो मिलिट्री जो यहाँ की है उसको आर्म सप्लाई कर, ठीक है, म्यांमार की मिलिट्री को आर्म सप्लाई कर रही है। ओके, आर्मिंग द
Tatmadaw not only undermines India's position on restoring democracy but also adds fuel to the fire which spills over regularly across the border. क्योंकि जो बॉर्डर है नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेजिल है, सेंसिटिव है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द म्यांमार, ठीक है, मिजोरम हो गया एंड इधर, इसलिए क्योंकि पहले तो लोग एथनिक टाइज शेयर करते हैं, दूसरी बात ये कि वहां पे अगर रखाइन में कुछ प्रोविंस में कुछ होता है तो रोहिंग्यास भाग के दूसरी साइड आ जाते हैं, ठीक है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट फिर उनको शरण दे देती है, फिर होम मिनिस्ट्री कहती है कि भाई ऐसे नहीं करना, फिर सरकार मानती नहीं वहाँ की, तो देयर आर लॉट्स ऑफ इशू जो हमारे डेमोक्रेटिक फ्रंट पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, प्लस ड्रग्स एंड ऑल स्मगलिंग भी चलती है बॉर्डर पे उस साइड, so that's why these are the issues. Now an approach to pursue, solution क्या है अब इसका? India's policy options in Myanmar are challenging but not limited. The relaxation of Ms. Suki's prison sentence may provide an opportunity for India to engage with her and pro-democracy actors including the NUG. So this is the first point of suggestion कि जैसे उनकी prison term को कम किया है वहाँ की जनता ने, मिलिट्री ने, ठीक है, सो गवर्नमेंट रिलैक्सेशन जो इनको मिल रही है सूकी को, अब सूकी के साथ जो है वो एंगेजमेंट जो है सर गवर्नमेंट इंडिया की बढ़ा सकती है, ठीक है, प्लस एश्योर कर सकती है प्रो डेमोक्रेसी, दिस डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने में. Second, the government and media must avoid blanket securitization and profiling of incoming refugees, many of whom have ties of kinship in India. तो सेकेंड ये है कि जो किनशिप, जो रिफ्यूजी जो आ रहे हैं, स्पेशली रोहिंग्याज हैं और भी म्यांमार से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उनको सिर्फ हमें इस चश्मे से नहीं देखना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं इंडिया की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, ठीक है, रादर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दे ऑल्सो हैव एथनिक टाइज और किनशिप टाइज इन विद देयर इंडियन काउंटरपार्ट्स, इंडियन दिस population. This approach is essential to prevent further violence and foster an environment of care and compassion. So this is what he is concluding. So of course a small piece of article giving many of the different insights, ठीक है, so it's a good article, do read and revise as well, ठीक है, in order to get the current position or current status of India's and Myanmar relation, ठीक है. उसके बाद हम यहाँ जाते हैं, एक बड़ा ही पैराडॉक्सिकल सिचुएशन अगेन हमें देखने को मिल रहा है एंड दैट इज रिलेटेड टू द डिफ्लेशन इन चाइनीज इकोनॉमी. वर्ल्ड में जैसे कि कल एमपीसी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ और आरबीआई, उसने भी अपनी पॉलिसी रेपो रेट को चेंज नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि वर्ल्ड ओवर इंक्लूडिंग इंडिया हमें कहीं ना कहीं अभी भी इन्फ्लेशन की जो ट्रेंड है वो देखने को मिल रही है, ठीक है, कि ये एंटिसिपेशन भी है कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकती है. फॉर एग्जांपल अभी के जो करंट शॉक्स हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, दैट इज फूड एंड वेजिटेबल प्राइसेस, स्पेशली फॉर एग्जांपल टमाटो प्राइसेस, ठीक है. तो जो टमाटर 2 महीने पहले 30 रुपए किलो होता था वो आज 300 रुपए किलो, 200 रुपए किलो मिल रहा है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ मच इट इज फीलिंग टू द इन्फ्लेशन, लीडिंग एडिंग टू द इन्फ्लेशन. सो देयरफॉर बट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में जहां एक तरफ इन्फ्लेशन, इवन के इंक्लूडिंग यूएस में भी इन्फ्लेशनरी ट्रेंड देखने को मिल रहा है, वहीं सेम टाइम चाइना में डिफ्लेशन देखने को मिल रहा है. क्यों? इश्यूज क्या है एंड इसका डाउन साइड या अपसाइड क्या हो सकता है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल. तो पहले तो सीधी सी बात है कि आप ये समझ लो कि डिफ्लेशन जो है दैट इज रिवर्स ऑफ और अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन क्या होता है, तो इसको भी अप्रोच करने के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं. वन द इकोनॉमिस्ट, पहला ये जो सिंपल हम समझते हैं आज के टाइम में, ये इन सिंपल टर्म्स कि इन्फ्लेशन इज नथिंग बट जनरल राइज इन योर प्राइस लेवल, ठीक है. डिफ्लेशन उल्टा है कि जनरल फॉल इन योर प्राइस लेवल इंस्टेड ऑफ राइजिंग. सो दीज आर द टू कॉन्सेप्ट्स. सो क्विकली सी, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि चाइना में डिफ्लेशन है, उसके पीछे की रीजन क्या है. तो रीजन जो है वो सीपीआई से पता लगता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से. एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है चाइना में वो इंडिया में जैसे बढ़ रहा है बट चाइना में कम हो रहा है. सो कंज्यूमर प्राइसेस इन चाइना डिक्लाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 2 years in July this year. The consumer price index declined by 0.3%, leading to call for steps to boost demand. ठीक है. सो जब डिफ्लेशन है, जब आपकी प्राइसेस कम हो रही है, देखो डिमांड एंड प्राइस का इनवर्स रिलेशन है जनरली. सो है क्या कि जब आपकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, सप्लाई के में एक इशू ये है कि सप्लाई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में एंड मार्केट तक लाने में एक जेस्टेशन पीरियड होता है, गैप होता है, ठीक है. सो सपोज आप किसी चीज की डिमांड कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आज ही आपको उसी टाइम मिल जाए, उसमें टाइम लग सकता है, ठीक है.
क्योंकि उसकी प्रोडक्शन होगी तब तक एंड फिर वो मार्केट में आएगी, तब तक देर कुछ टाइम लगेगा। जेस्टेशन पीरियड उसको हम बोलते हैं, जेस्टेशन गैप बेसिकली बिटवीन फाइनल रीचिंग ऑफ द प्रोडक्ट टू मार्केट एंड इट्स प्रोडक्शन। तो होता क्या है कि जब आप डिमांड कर रहे हो तो डिमांड जो है बहुत ज्यादा है मार्केट में, सप्लाई कम है, इस वजह से स्ट्रेस पड़ सो अल्टीमेटली होता क्या है कि प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जो ज्यादा पे करेगा उसको चीज मिल जाएगी, सीधी सी बात है। तो ये सिंपल टर्म्स में ये होता है इन्फ्लेशन, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है। डिफ्लेशन के केस में क्या है कि डिमांड ही कम है मार्केट में, लेटर से सप्लाई ज्यादा है। तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन कि इसलिए आपकी जो है प्राइस हो जो डिप्रेस्ड हो चुका है, मींस प्राइस कम हो चुका है, फॉल हो चुकी है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर डिफ्लेशन। इसीलिए कहा जा रहा है कि डिमांड जो है वो चाइना को बूस्ट करने की जरूरत है, सो दैट कि लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करें मार्केट में। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज डिफ्लेशन? Deflation is a term that is used these days to refer to a general fall in the prices of goods and services in an economy. The definition of deflation, however, has not always remained constant. In the past, terms inflation and deflation were used to refer to a rise or fall, respectively, in the money supply rather than a rise or fall in price. तो पहले हम डिफ्लेशन इन्फ्लेशन को जो देखते थे विद रिस्पेक्ट टू राइज एंड फॉल इन मनी सप्लाई के साथ देखते थे। कैसे? क्योंकि सपोज देखो किसी भी इकोनॉमी में अगर मनी सप्लाई जो है वो सेंट्रल बैंक अगर बढ़ा रही है, इंक्रीज कर रही है, तो मनी सप्लाई बढ़ने की बात से क्या होता है कि आपके जो परचेजिंग पावर है और जो परचेजिंग पावर लेटर से वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपके हाथ में पैसा, इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, उसकी वजह से जनता के हाथ में पैसा ज्यादा आ रहा है। अब जब पैसा ज्यादा आ रहा है इट मीन्स कि आप डिमांड ज्यादा करोगे, डिमांड ज्यादा करोगे, एंड आई सेड कि देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन द प्रोडक्ट रीचिंग टू द मार्केट एंड व्हेन यू आर डिमांडिंग, सो प्रोड्यूस करने में टाइम लगता है। सो जितना ये गैप हो बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, जितने भी टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, बिटवीन डिमांड सप्लाई, उस टाइम पीरियड तक आप देखोगे उस उतने टाइम पीरियड के लिए कि आपकी जो है इन्फ्लेशन अल्टीमेटली इंक्रीज हो रही है, कि जनरल प्राइस लेवल जो है बढ़ रहा है, क्योंकि परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ मनी सप्लाई, मनी सर्कुलेशन इकोनॉमी में ज्यादा हो रही है। इसकी वजह से आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो, सप्लाई में टाइम लगेगा, प्रोडक्ट को मार्केट में आने में टाइम लगेगा, इसलिए उस टाइम पीरियड के लिए जब तक सप्लाई और डिमांड में गैप है तब तक आप देखते हो कि अल्टीमेटली जो प्राइस लेवल है वो इकोनॉमी में बढ़ रही है, मीन्स इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर। ठीक है, तो इसलिए ये भी अप्रोच पहले था कि सिर्फ इन्फ्लेशन ये नहीं, जनरल राइज इन प्राइस लेवल, बट पहले ये ट्रीटमेंट होती थी कि पास्ट में हम ये कहते थे कि इन्फ्लेशन इज बेसिकली राइज इन द मनी सप्लाई। सो अल्टीमेटली आप देखो कि इफेक्ट कहाँ के पड़ रहा है, मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ने की वजह से आपकी जनरल प्राइस जो है वो राइज कर रही है। तो बात वही है घुमा फिरा के, because a rise in the money supply was expected to contribute to higher prices in the wider economy, while a fall in the money supply was believed to lead to a lower prices. But इस पे इकोनॉमिस्ट अग्री नहीं करते। ठीक है, there are two schools of economics you can say, or different groups of economists who treat this in different manner. So let us quickly see that what are their views actually. So why is it worry? First of all, many economists believe that deflation is a sign of falling demand for goods and services which could lead to a slowdown in economic growth. बिल्कुल ठीक बात है, अगर इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है प्रोडक्ट की तो एक रैशनल प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, न्यू जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी उससे, क्योंकि अगर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसको लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, तो एम्प्लॉयमेंट पे फर्क पड़ेगा। अल्टीमेटली दिस विल ट्रांसलेट इनटू इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, कि आपकी ओवरऑल जो जीडीपी है वही कम ग्रो कर रही है। According to them, this first school or set of economists, the demand for goods and services is the driver of economic growth. Falling prices can also push buyers to postpone their purchases, expecting further lowering of price in the future. तो ऐसा भी होता है कि प्राइस अगर गिरना स्टार्ट हो गया तो हम सोचते हैं कि चलो यार अब तो फॉल ही कर रहा है, तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन और रुक जाते हैं, क्या पता प्राइस और कम हो जाए। ठीक है, सो एक ये भी एंटिसिपेशन होती है। This in turn can further dampen demand in the economy. So this is how they argue, the first set of economists you can say. But a certain degree of inflation is believed to be necessary for the fuller utilization of the resources in an economy. क्यों? Because it is said that deflation can lead to business losses and lower growth as costs remain sticky. Sticky is rigid basically.
कि कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है एकदम से कम नहीं होती। अगर डिफ्लेशन है, डिमांड नहीं है, तो फिक्स्ड कॉस्ट भी तो कुछ होती है ना। अगर आपने फैक्ट्री लगाई है तो आपको उसको चलाना भी है। सो देयरफॉर प्राइसेस समवेयर कॉस्ट जो है वो एट टाइम्स स्टिकी हो जाती है, रिजिड हो जाती है। तो इसलिए बिजनेस को जो है उसको लॉस फेस करना पड़ता है। फाइन, एंड अल्टीमेटली दिस ट्रांसलेट्स इनटू लोअर ग्रोथ। It can also mess up credit contracts as borrowers will have to pay back more। ठीक है, कि अगर आपने पहले क्रेडिट लिया है, कर्जा लिया है, तो आपने बोरो किया है, तो हो सकता है कि उस टाइम पे आपने, ठीक है, ज्यादा लेट अस से सस्ते में कर लिया हो, बट अब आपकी जो वैल्यू है रुपए की वो कम होती जा रही है। ठीक है, ज्यादा नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है। तो इट मीन्स कि रियल टर्म्स में अब आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, hence these economists recommend that the Chinese government and the Chinese central bank should take the necessary step to boost demand in the economy। ठीक है, तो फर्स्ट सेट ऑफ इकोनॉमिस्ट जो है उनका क्या उनकी सजेशन क्या है कि चाइनीज गवर्नमेंट वुड बूस्ट इट्स डिमांड। ठीक है, other economists point out that deflation per se may not be a problem. Many economies including the US and China in the past have experienced deflation during times of rapid economic growth। तो सेकंड स्कूल ऑफ इकोनॉमिस्ट जो है या सेकंड ग्रुप जो है वो ये कहता है कि डिफ्लेशन पर से इज नॉट प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज पहले भी हमने पास्ट में इस ट्रेंड देखे हैं कि यूएस की इकोनॉमी हो, चाइना की हो या इवन जापान की हो, कि ड्यूरिंग डिफ्लेशनरी ट्रेंड भी हमें और टाइम्स ऑफ डिफ्लेशन भी हमें इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला है। इवन अ कंट्री लाइक जापान which has been plagued by persistent deflation for years actually witnessed a rise in per capita real income during the era of deflation। तो ये बिल्कुल ही अपोजिट है जो फर्स्ट ग्रुप की बात कर रही है उससे। Deflation in such cases is the result of a rise in the supply of goods and services that outpaces the rate of money supply growth। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सेकेंड ग्रुप ये कह रहा है कि जो डिफ्लेशन होने का जो रीजन है वो ये है कि बिकॉज ऑफ राइज इन और ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओवर सप्लाई होने की वजह से क्या होगा, सिर्फ डिमांड जो है वो उतनी ही है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो अल्टीमेटली प्राइस जो है आपकी फॉल करेगी, मींस महंगाई कम होगी, चीजें सस्ती होगी। ठीक है, तो आइदर वे, सो इनका सेकंड आई मीन सप्लाई पे फोकस ज्यादा है, सप्लाई साइड, एंड फर्स्ट वाले ग्रुप को हमने जो बात की दे आर फोकसिंग मोर ऑन डिमांड साइड। So it should also be noted that it is not quite uncommon for countries experiencing high price inflation to suffer from low or even negative economic growth at the same time। तो इसलिए डिनाई करते हैं इस चीज को कि हायर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन है तो जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी नेगेटिवली इंपैक्ट होगी। However, deflation can also be a sign of economic turmoil। कैसे? During times of economic crisis, spending by individuals can drop temporarily as they become more cautious about the trend। Sometimes deflation in the official price indicators can also be a sign of process of reallocation of resources। ठीक है, reallocation of resources में भी इसको consider किया जा सकता है by the government or the policy makers। Now these economists also argue that deflation did not cause consumers to postpone purchase as widely believed। जैसे हमने देखा कि ये होता है कई बार कि कंज्यूमर्स ये सोचते हैं कि और प्राइसेस फॉल होगी, इसलिए आउट ऑफ एंटिसिपेशन दे एक्चुअली पोस्टपोन देयर current purchases, but this is not so as per this economist। It is not the prices that determine actually consumer demand for goods and services, but it is rather consumer demand that determines prices। तो ये इनवर्स है। जनरली हम यही मानते हैं कि प्राइस राइज होने की वजह से डिमांड पे इंपैक्ट पड़ता है, बट दे आर सेइंग कि नो, इट इज अ कंज्यूमर डिमांड व्हिच एक्चुअली इन्फ्लुएंसेस द प्राइसेस। ठीक है, so even this is correct, either way both things are correct, बट इट इज रादर कंज्यूमर डिमांड दैट एक्चुअली डिटरमाइंस प्राइस। क्योंकि अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, देखो दोनों साइड से समझ सकते हैं, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत है, तो आप चीजें कम डिमांड करते हो। अगर नॉर्मल सिनेरियो है तो आप डिमांड बहुत ज्यादा करते हो। सिंस सप्लाई लैक की वजह से अगर डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हो तो प्रोडक्शन में टाइम लगता है, मार्केट में आने तक प्रोडक्ट को टाइम लगेगा, तो उस टाइम पीरियड के लिए अगेन बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिमांड स्ट्रेस पड़ेगा प्राइस पे, उसकी वजह से फिर इन्फ्लेशन होती है। तो बोथ आइदर वे से आप किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। So the direction of causation runs from consumer demand to price rather than reverse। So according to this second group of economists, जो causation of inflation है that runs actually, or the direction of causation है that runs from consumer demand to price rather than from price to consumer demand। Moreover,
deflation did not cause sustained business losses since businesses can adjust what they pay for their inputs according to what their customers are willing to pay for their goods and services. तो ये कह रहे हैं कि businesses को भी loss नहीं होगा because businesses should be able to adopt this changing trend and will adjust according to the willingness of their customers to pay. ठीक है? Now why is China actually experiencing deflation? So it is because of its own domestic issues. China is experiencing deflation at a time when the People's Bank of China or the Chinese Central Bank continues to keep interest rates low to boost demand in the economy. Means यहाँ से क्या पता लगता है कि अल्टीमेटली मेजर जो रीजन है जो डिफ्लेशन का इन चाइनीज इकोनॉमी दैट इज डिप्रेस डिमांड. एक्चुअली डिमांड ही नहीं है. This is in contrast to other central banks like for example RBI which have been tightening policy to fight high inflation after the COVID-19 pandemic. The likely reason behind Chinese deflation may not be the lack of liquidity but rather something more fundamental. ठीक है. तो इशू पैसों की नहीं है कि लिक्विडिटी नहीं है, क्रेडिट क्रिएशन नहीं हो ये इकोनॉमी में, लोगों के हिसाब से ऐसा नहीं है, बट इशू रियल इशू इज मोर फंडामेंटल एंड दैट माइट बी कि डिमांड ही लोग नहीं कर रहे हैं. A proper study of the Chinese money supply and monetary transmission can help us come to a definite conclusion. It should be noted that the Chinese economy has been experiencing turmoil even before the pandemic in the property sector, suppose real estate sector actually, which contribute to a large share of Chinese GDP. The Chinese policymakers have been trying to bring about a soft landing of their economy. Soft landing क्या होती है? Soft landing होता है कि जब आप एक moderate डिफ्लेशनरी ट्रेंड देखने को मिलती है इकोनॉमी में कि आप जो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी है उसको थोड़ा स्लो कर देते हो आफ्टर रैपिड और लॉन्ग टर्म लेटर से हाई ग्रोथ ऑफ जीडीपी और योर इकोनॉमी. ठीक है. सो सॉफ्ट लैंडिंग एक हमने चंद्रयान 3 के कॉन्टेक्स्ट में बात की थी और एक यहाँ पे, तो देयर आर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट मीनिंग्स. क्रेडिट बूम्स लाइक द वन विटनेस इन चाइना कैन कॉज द मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द बस्ट कैन इन्वॉल्व अ फॉल इन ब्रॉडर प्राइसेस. ठीक है. सो मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से भी हमें डिफ्लेशनरी ट्रेंड चाइना में देखने को मिल रहा है और मिल सकता है. ठीक है. सो दीज आर द रीजंस एक्चुअली. व्हाट आर मोर इंपॉर्टेंट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड कंसेप्चुअली व्हाट इज डिफ्लेशन एंड हाउ वी कैन परसीव और सी दिस. So there are two group of economists and both of them are correct in their own explanation, but we are getting the different insights actually. Fine. So we should take this in that manner. Okay. Now miscellaneous facts. Jammu Kashmir surrendered its sovereignty to India absolutely and completely. Supreme Court Justice Chandrachud, CJ Chief Justice of India ने ऐसा कहा है कि limitations placed on the legislative power of Parliament cannot be construed to mean that Jammu Kashmir, unlike other princely states, retained its sovereignty. ठीक है. सो हियरिंग जैसे कि पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि रोज कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है बिकॉज हियरिंग चल रही है ऑन द रिलेटेड टू एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 that was actually abrogated in the year 2019. तो उससे रिलेटेड है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल था कि नहीं था. सो फाइनल जब जजमेंट इस पे आ जाएगी तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट लगता है जिस हिसाब से हियरिंग चल रही है कि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को कोई खास दिक्कत होने वाली नहीं है एंड कोर्ट मान जाएगा कि हाँ दिस वाज लीगल नॉट इलीगल. ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो वैलिडिटी है उसकी या जो उसको लग रहा है मतलब हियरिंग से, बट anyhow we cannot predict the judgment. Okay, more of politics only related to the parliament. This is important. India Japan is studying ways to restart trilateral cooperation with Sri Lanka. पहले भी ऐसा चल रहा था कि ये cooperation होने वाली थी, but because of the domestic crisis which actually are the kind of economic crisis which were actually that we have seen in Sri Lanka, because of that somewhere ऐसा नहीं हो पाया. बट दोबारा से ये कॉपरेशन ट्राइलेटरल कॉपरेशन बिटवीन इंडिया जापान एंड श्रीलंका स्टार्ट करने की कोशिश हो रही है. So more than 2 years after Sri Lanka actually cancelled joint India-Japan MOU for the East Container Terminal project in Colombo, the three countries are studying ways of restarting trilateral cooperation. ठीक है. With India and Japan coming to Sri Lanka rescue during last year's economic crisis and offering assistance with Sri Lanka's debt restructuring process,
द करंट गवर्नमेंट जो है रानिल विक्रमसिंघे की श्रीलंका में, वो काफी मीन्स चाहती है इसको स्टार्ट करना, बिकॉज अल्टीमेटली रेस्क्यू जो किया था वो जापान, आई मीन देयर आर द कंसोर्टियम ऑफ कंट्रीज, बट मेजरली जापान एंड इंडिया की जो है वो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी बात की कि जापान इंडिया ने दिस कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी दिए थे एंड स्वैपिंग भी हुई थी करेंसी की, करेंसी स्वैप भी देखने को मिला था हमें। सो फाइनली जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी श्रीलंका में, उससे बाहर निकालने में श्रीलंका को काफी हद तक इन दोनों कंट्रीज ने मदद की थी एंड उसी की अब जो डिविडेंड है वो इस कोऑपरेशन के थ्रू मिल सकती है। बट यू सी दिस हैज बीन some projects in Sri Lanka which were to be executed jointly by India and Japan did not progress due to several reasons. Fine, but that should not deter us in exploring new cooperation. India and Japan share a vision of free, open and inclusive Indo-Pacific, which is of relevance to all countries in the region, including Sri Lanka. So this has been said by the Puneet Agrawal, Joint Secretary External Affairs Ministry. It was, this all happened actually at the conference on trilateral cooperation organized by a think tank like NATSTRAT and Vivekananda International Foundation from India and Pathfinder from Sri Lanka. ठीक है, सो उसके साइडलाइन पे एक्चुअली ये डिस्कशन चल रही है कि दोबारा से हम रीस्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट कहाँ पे किस फील्ड में कर सकते हैं। सो India and Japan can work together on renewable energy and grid connectivity projects, development of Trincomalee as an oil pipeline hub, connectivity and people-centric projects. So these are the areas where actually India, Japan can cooperate or can build a trilateral cooperation with Sri Lanka. ठीक है, ऐसा ही कुछ जापान के एम्बेसडर ने भी कहा है that Japan was keen to work with India as a project in South Asia, on projects in South Asia, making a particular reference to Sri Lanka's debt restructuring process. He said that necessary condition was that Sri Lanka would treat all creditors equally. ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीजें हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ एरियाज हैं, रिन्यूएबल, ग्रिड कनेक्टिविटी, त्रिनकोमाली जो ऑयल हब है श्रीलंका का, तो इन एरियाज पे, इन प्लेसेस पे एक्चुअली और इन डिफरेंट एरियाज और डायमेंशंस में तीनों कंट्रीज मिलकर साथ में काम कर सकती हैं। ठीक है, ओके, अनदर इंपॉर्टेंट, MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ RBI होल्ड्स रेट्स, लिफ्ट्स फाइनेंशियल ईयर 24 इन्फ्लेशन फोरकास्ट टू 5.4%। फाइन, पॉइंट दिस 30 बेसिस पॉइंट्स इसको इंक्रीज किया, पहले 5.1 पिछले MPC की उसमें थी, अब ये 5.4, मींस इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं RBI को भी है कि बढ़ सकती है। Retains growth view. So what are the क्या निकल गया है कल की मीटिंग से? सो पॉलिसी रेपो रेट को अनचेंज रखा है 6.5%, इसीलिए कह रहे हैं कि MPC होल्ड्स रेट्स। ठीक है, उसके बाद RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लीव्स पॉलिसी रेट अनचेंज्ड फॉर द थर्ड स्ट्रेट मीटिंग. Majority of the members opts to stay focused on the withdrawal of accommodation to ensure that inflation align with the target while supporting growth. तो फोकस क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी अलोंगसाइड ग्रोथ। ठीक है, एंड विथड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? दिस इज अ पॉलिसी स्टांस वेयर एक्चुअली द RBI और द सेंट्रल बैंक फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई। ठीक है, क्योंकि मनी सप्लाई और ज्यादा होगी कंट्री में तो क्या होगा कि जो एक्सप्लेन किया था मैंने कि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा, डिमांड ज्यादा करोगे, फिर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। इसलिए फोकस जो है वो ऑन रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई पे है। MPC retains its projection for real GDP growth for the financial year 2024 at 6.5%. So easy है याद रखना कि GDP forecast 6.5% and policy rate भी 6.5% है। ठीक है, but RBI has taken one step to increase the incremental CRR of 10% from the fortnight of August 12. Now incremental CRR क्या होती है? CRR is basically cash reserve ratio, जो कि सेंट्रल बैंक के पास जो हमारे कमर्शियल बैंक से उनको रखवानी पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट अस से 4%, सो 4% जो है आउट ऑफ द टोटल नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज जो है, डिपॉजिट्स हैं, उसमें से इनको कैश फॉर्म में रखनी पड़ती है RBI के पास। नाउ यहाँ पे इंक्रीमेंटल CRR की बात हो रही है, ना कि CRR पर से की। तो इंक्रीमेंटल CRR क्या है? ICRR। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो इंक्रीमेंट हो रही है 4% तो है ही है, ठीक है,
प्लस इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कैसे कि फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इकोनॉमी में आ गई, लिक्विडिटी ज्यादा कैसे आ गई, एक इसका रीजन ये है कि देयर दिस मेजर इज इंटेंडेड टू एब्जॉर्ब द सरप्लस लिक्विडिटी जनरेटेड बाय वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग द रिटर्न ऑफ 2000 नोट्स टू द बैंकिंग सिस्टम। कि जब 2000 के बैंक नोट्स के पास आ रहे हैं तो उसकी वजह से उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी वो बढ़ रही है, लिक्विडिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसलिए उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए इन्होंने इस टाइम विंडो लगाया है कि बिटवीन मई 19 एंड जुलाई 28 के बीच में जो भी आपके पास लिक्विडिटी आई है उस पे 10% उसका एडिशनल अमाउंट आपको किसके आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा, इसलिए इट इज सेड एज इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट दिस सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। ये मत समझना कि 10% सीआरआर बढ़ा दिया, दिस इज इंक्रीमेंटल मींस एडिशनल जो डिपॉजिट है उस पे बढ़ाया है। एनडीटीएल जिसको बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। Finally, here we have this world page. Next page. So कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं, वाइल्ड फायर डिस्ट्रॉयज हवाई टाउन लिविंग एटलीस्ट 36 डेड। तो वर्ल्ड वाइड हमें फायर देखने को मिल रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड ड्राई कंडीशंस बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ऑल। तो इस तरह से कल हमने अमेजोन में जो मीट चल रही थी अमंग द South Asian country, this South American countries or the Latin American countries, that was headed by or summit was led by Brazil. तो हमने ये भी देखा था अमेजोन फॉरेस्ट को बचाने के लिए कुछ ये स्टेप्स ले रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, नॉट दैट एनीथिंग न्यू। फाइनली स्पोर्ट्स पेज, यहाँ से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस चल रहा है, हॉकी की सेमीफाइनल होने वाली है, ठीक है। So that's it as far as today's Hindu analysis is concerned. इससे पहले कि हम चलें क्विकली हम आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि आज आप लोगों ने क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो सी दीज आर द क्वेश्चंस। नंबर 1 क्वेश्चन, द मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2018, comprises 5 member countries and the area of cooperation are this: tourism, culture, education, transportation and communication। आपको पेयरिंग में आंसर चूज करना है कि कौन सा पेयर करेक्ट है, फर्स्ट ओनली पेयर या 2 पेयर्स, ठीक है, आउट ऑफ 3 स्टेट में 3 पेयर्स, और तीनों के तीनों सही है, कोई भी नहीं। जो मेंस के लिए आपने लिखना है आंसर, दैट इज व्हाई इज चाइना एक्सप्रेसिंग डिफ्लेशन व्हाइल अदर कंट्रीज ग्रैपल विद राइजिंग इन्फ्लेशन। इस पे कमेंट करना है आपने, ठीक है, फॉर 10 मार्कर। सो दैट्स इट फ्रॉम द टुडेज एनालिसिस। इफ यू हैव एनी क्वेरी एनीथिंग यू कैन पुट द सेम इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep revising, take care and stay tuned for the tomorrow's Hindu analysis. Thank you.